Article 32 is right to constitutional remedies. First of all, Article 32 is a right to constitutional remedies. Means whatever rights which are given to you for in case violation happens, you have a method to address those violation. Now, regarding Article 32, what Ambedkar held that this is the most important provision of Part 3 because none of the rights actually matter if you do not have the right for redressal of the grievances. And another thing is Article 32 is a part of basic structure, means it cannot be minimized, it cannot be infringed even by the amendment. तो सबसे पहले point number 1, the most important provision of part 3. डैश करके अंबेडकर. Second, declared by Supreme Court as basic structure, means cannot be made limited even by amendment. Next, having fundamental rights would have carried no meaning if right to enforcement of fundamental rights is not given. इन्फोर्समेंट का मीनिंग क्या होता है? जब लॉ को वायलेट हो या राइट वायलेट हो तो उसको इन्फोर्स किया जाए, तो इट इज इटसेल्फ अ फंडामेंटल राइट, इसलिए कोई और राइट देने की कोई जरूरत ही नहीं थी. ठीक है. नेक्स्ट लिखो नेक्स्ट आर्टिकल 32 कैन नॉट बी सस्पेंडेड एक्सेप्ट during national emergency, that too as per Article 359. ठीक है. तो प्रेसिडेंशियल ऑर्डर से ही आप इसको प्रोटेक्ट कर सकते हैं. अब नेक्स्ट लिखो, दिस राइट मेक्स सुप्रीम कोर्ट गार्डियन ऑफ फंडामेंटल राइट्स. अंडरलाइन करो गार्डियन. विच टाइप ऑफ गार्डियन? गार्ड विथ सोल्जर्स, सॉरी गार्ड with arms, guard with arms. ठीक है. तो इस टर्म को क्या कहते हैं? सेंटिनल क्वी वी. सेंटिनल क्वी वी.
आर्म्स अंडरलाइन करो. व्हाट आर दीज आर्म्स? writs. Power to issue writs. अब writ क्या होते हैं? writ means order. writ means order. Is judgment and order same? नहीं. judgment लेकिन order. order मतलब power of Supreme Court. order. But what is special about this order? It is a written order. written है, चीजें proven है, कोई ऑफिसर ये नहीं कह सकता है there is no scope for doubt. ठीक है? order. But which type of order? The written order means very clear cut order. Fine. Next, it is the duty of Supreme Court and the rights of people अंडरलाइन करो. ड्यूटी ऑफ सुप्रीम कोर्ट एरो करके लिखो. दो ड्यूटी एंड सुप्रीम कोर्ट कैन नॉट डिनाई granting of writs for redressal of grievances. Yet, Supreme Court provides for certain procedures or appropriate procedures. Underline करो. appropriate procedures. देखो, it means in certain circumstances judiciary may deny the granting of writs. पहला क्या है? डॉक्ट्रीन ऑफ रेस जुडिकाटा. डॉक्ट्रीन ऑफ रेस जुडिकाटा I have explained. If a person has taken the route of High Court, then you lose this particular right, res judicata, and then you can approach to Supreme Court as a part of appeal. But res judicata is not being applied in case where it is a matter of right to life and personal liberty. And what does doctrine of res judicata means? Giving validity or recognition to the court of competent jurisdiction. तो ये कुछ exceptions हैं. Second exception क्या है? Doctrine of laches. Laches means there should be no unnecessary delay. अब लिखो इन प्रैक्टिस जो सुप्रीम कोर्ट ने प्रैक्टिस अडॉप्ट कर रखी है. इन प्रैक्टिस सुप्रीम कोर्ट इनकरेजेस people to avail the route of Article 226. ठीक है? Article 226 अंडरलाइन करो. As High Court is also the court of
competent jurisdiction. प्रैक्टिस में ऐसे इनकरेज किया जाता है, लेकिन कॉन्स्टिट्यूशनली तो उनका रिस्पॉन्सिबिलिटी है. अब ये है व्हाट इज द एडवांटेज इफ पर्सन गोज टू हाई कोर्ट फर्स्ट. देखो, व्हाट इज द एडवांटेज इफ पर्सन गोज टू हाई कोर्ट फर्स्ट. And why they are encouraged to do so. ठीक है, तो रीजन ये है, लास्ट रेमेडी पर ही अगर आप पहुंच गए और वहां पे आपका एप्रोप्रिएट प्रोसीडिंग्स हैं, मतलब यू शुड कम इन अ वेरी स्पेसिफिक मैनर, आपका केस बहुत स्पेसिफिक मैनर में होना चाहिए, एविडेंस बेस्ड होना चाहिए. लेकिन हाईएस्ट लेवल पर इफ इट इज रिजेक्टेड, देयर इज नो नेक्स्ट रूट. सो इफ यू गो एट अ लेवल ऑफ हाई कोर्ट and suppose there are some infirmities in your application, then it will be rejected by high court. So you will understand that these are some lacuna. You can make your case strong and then you approach to Supreme Court. Fine. So it is always encouraged in practice that person go to the high court. ठीक है. अब why it is so? Because Supreme Court is the highest court and it is a last remedy. देखो, if petition is rejected, person has no second chance. To make corrections. आप लिखो, hence in practice high court becomes the first to approach in case of violation of fundamental rights. है? वो पेटिशन हो गया ना, आप राइट छोड़ रहे हो, तो आप अपने curative petition is not granted in a very normal sense. It is only in exceptional sense. You should not reach to the highest authority first. You should reach to the lower authority first. Then understand, make your case proper, and then the rejection chances will be less. So practice में, जैसे let us say AMU case, why in Allahabad High Court? तो somebody will say because of the distance. वो रीजन नहीं है, टेक्निकल रीजन ये है कि प्रैक्टिस में वो अडॉप्ट किया जाता है, वो पर्सन के फेवर में जाता है. इसलिए पहले इलाहाबाद हाई कोर्ट, देन सुप्रीम कोर्ट. सुप्रीम कोर्ट के पास भी आप डायरेक्टली जा सकते थे, लेकिन अगर आपके एप्लीकेशन पेटिशन में कुछ भी कमी होगी तो वो रिजेक्ट कर देंगे, तो फिर स्कोप नहीं बचता है, फिर आपको फिर से करना पड़ेगा. इसलिए ये प्रैक्टिस में इनकरेज किया जाता है. ठीक है, आप ऐसे लिखते हैं, बोथ हाई कोर्ट एंड सुप्रीम कोर्ट have power to issue writs for enforcement of fundamental rights. Can we call it concurrent jurisdiction, comma, right? Thus they have concurrent jurisdiction.
इसका मतलब क्या? इट मीन्स इट इज नॉट द एक्सक्लूसिव जुरिस्डिक्शन ऑफ सुप्रीम कोर्ट. फुल स्टॉप. लिखो, सिंस सुप्रीम कोर्ट इज एक्सक्लूसिव, comma, its powers to issue writs, एक्सक्लूसिव है, बहुत सारे स्पेशल काम है. its powers to issue writs are being made limited, underline are being made limited. ठीक है, मीन्स ओनली फॉर फंडामेंटल राइट्स, comma, which enjoy highest status. Whereas Supreme Court can issue writs for various rights. Sorry, High Court can issue writs for various rights, including legal rights. अब एक क्वेश्चन लिखो. लिखो, वेदर सुप्रीम कोर्ट has restricted itself with the issue of giving writs only for the purpose of protection of rights. केवल राइट्स के प्रोटेक्शन के लिए ही रिट्स इशू की? आंसर इज नो. लिखो, इट हैज यूज्ड रिट जुरिस्डिक्शन फॉर अदर पर्पसेस ऑल्सो. अदर पर्पसेस अंडरलाइन करो, which are not directly associated with violation of fundamental rights. अब लिखो, फॉर एग्जाम्पल, टू एस्टैब्लिश रूल ऑफ लॉ. ठीक है, तो बाकी पर्पस के लिए भी ये करते हैं, लेकिन फंडामेंटल राइट्स के लिए तो इसमें दिया हुआ है. अब आर्टिकल 32 लिखते हैं, क्लॉज 1. ये है राइट टू मूव टू द कोर्ट. for enforcement of fundamental rights. मतलब right to enforcement is also a right. Right to move to the court for enforcement of fundamental rights by appropriate proceedings. तमीज से जाना है. ठीक है, एप्रोप्रिएट प्रोसीडिंग्स. अब अंडरलाइन करो, एप्रोप्रिएट प्रोसीडिंग्स. अब लिखो, आर दे डिफाइंड? आंसर इज नो.
ठीक है, इसका मतलब है इट इज अप टू सुप्रीम कोर्ट, इट इज अप टू सुप्रीम कोर्ट टू डिसाइड appropriate proceedings. Is our constitution written? It looks like written, but unwritten. Nothing is defined. ठीक है, तो अब फिर है, is Article 32 a absolute right? Absolute right है बिना लिमिटेशन के? नहीं. It is to be enforced according to the appropriate proceeding. जैसे it is not an absolute right, option A, absolute proceeding, option B, it can be suspended during national emergency, option C, both, D, none, both होगा, ठीक है, एब्सोल्यूट राइट नहीं है, दोनों रीजन जो है इसे लिमिट कर रहे हैं, एप्रोप्रिएट प्रोसीडिंग्स. तो एप्रोप्रिएट प्रोसीडिंग का कंसेप्ट लिखो, अभी लिखो, व्हाट इज द मैनर इन विच सुप्रीम कोर्ट इज यूजिंग appropriate proceedings. ठीक है, अब लिखो, इनिशियली सुप्रीम कोर्ट हैज यूज्ड द कन्वेंशनल अप्रोच. कन्वेंशनल का मतलब है द पर्सन whose rights are infringed should approach Supreme Court either himself or through his representative. रिप्रेजेंटेटिव, लॉयर, खुद से जानी चाहिए वो एप्लीकेशन. ठीक है, अब लिखो, ट्रेंड सिंस 80s, ट्रेंड सिंस 80s, ये क्या हो गया? लिबरलाइजेशन ऑफ प्रिंसिपल ऑफ लोकस स्टैंडी. लोकस स्टैंडी मीन्स वेयर आर यू लोकेटेड इन दिस केस. आपका इस केस से क्या लेना देना है? आप क्यों प्रकट हो गए इस केस में? आप कौन होते हैं? वॉट लोकस स्टैंडी यू हैव. तो दिस इज बीइंग लिबरलाइज्ड. ठीक है, तो पहले क्या था? आप हैं या आपके रिप्रेजेंटेटिव हैं, आपके फैमिली मेंबर आपके रिप्रेजेंटेटिव, और वो थ्रू लॉयर कर सकते हैं. लेकिन आपसे पूछा जाएगा कि भाई तुम्हारा क्या लेना देना है, तुम तो उससे रिलेटेड ही नहीं हो. बट नाउ द प्रिंसिपल इज एक्सपैंडेड. लिबरलाइजेशन ऑफ द प्रिंसिपल ऑफ लोकस स्टैंडी. ठीक है, एरो करके लिखो, इंस्पायर्ड बाई social interest litigation of USA, in India termed as public interest litigation. PIL. ठीक है, अब लिखो, जस्टिस PN भगवती.
has been given credit for institutionalization of PIL in India, along with Justice Krishna Iyer. These two had played the role. ठीक है? The prominent initial cases of PIL have been बंधुआ मुक्ति मोर्चा केस, बंधुआ मुक्ति मोर्चा केस, कॉमा एसपी गुप्ता केस, जजेस केस जो था, एसपी गुप्ता केस. अब लिखो इन एसपी गुप्ता केस Supreme Court also defined the features of PIL. PIL, underline करो PIL, means any public spirited person can approach Supreme Court on behalf of the person whose rights have been violated. अब लिखो in another case judiciary held that person should come to the court with clean hands and clear heart. क्लियर हार्ट के साथ आए, अंडरलाइन करो क्लियर हार्ट. इट मीन्स PIL is not a political interest litigation. पॉलिटिकली मोटिवेटेड नहीं होने चाहिए. B, private interest litigation. You should have a public spirit. इसका मतलब लिखो, it should be guided by public spirit. लोक कल्याण की भावना से करें, खुद के फायदे के भावना से नहीं. ठीक है, पब्लिक स्पिरिट. एक क्वेश्चन लिखो, डज दैट मीन एनी एप्लीकेशन कैन बी रिजेक्टेड if there is some private interest of a person involved? Will it be rejected? Answer is no. जस्ट हमारा फायदा है इसका मतलब ये नहीं. जैसे अब मान लो करप्शन फ्री गवर्नेंस है, मेरा पर्सनल भी फायदा हो सकता है लेकिन व्यापक फायदा भी है, तो एक इस बेसिस पे नहीं, इंटेंशन वो चेक करेंगे कि आपका व्हाट इज द राइट इंटेंशन. तो आप भी फायदे में आ रहे हैं तो उसमें कुछ, दैट इज नॉट अ ग्राउंड. ठीक है, अब लिखो राइट नो.
that is not a ground to reject. Until and unless there is some malified intention. इसका मतलब क्या है? It is very contextual in interpretation. Interpretation will be very contextual. Judiciary keeps lot of things in its hands. Fine. So they always decide case to case, case to case. So it becomes very, very contextual thing. Fine. So it should not be political interest or private interest. Now, इसमें नेक्स्ट लिखो जुडिश. अब ये बताओ PIL strengthens Article 39A, equal justice, and it leads to the movement for judicial awareness in the country. ठीक है, तो PIL के कारण ही नालसा and all these things have come into existence. So PIL has connection with Article 39A. Fine. And for that particular purpose, and is PIL primarily meant for the vulnerable sections? Fine. So primarily the idea is those who are vulnerable, who may not be aware, who may not have resources, their rights should not be violated. Fine. But is it essential that it is to be used only for vulnerable? No. But the main objective is to help the marginalized section. That is why judiciary said that if its politicization happen, their interest will get affected. ठीक है, तो अब लिखो the prime purpose, though not the exclusive purpose, is to help the marginalized section and to advance the directive given in Article 39A. ठीक है, अब नेक्स्ट पैराग्राफ ऐसे लिखो एपिस्टोलरी जुरिस्डिक्शन. Epistolary jurisdiction. Epistolary means words, word. लिटरल मीनिंग हो गया शब्द. इसका मतलब क्या हुआ? सपोज जुडिशरी comes to know about the violation through publication of some report in newspaper or even by postcard. किसी ने पोस्ट कार्ड भेज दिया फेसलेस, कॉमा कॉमा जुडिशरी कैन टेक सुओ मोटो स्वतः संज्ञान, सुओ मोटो ऑन इट्स ओन. सुओ मोटो अंडरलाइन करो.
on its own initiative. एरो करके लिखो, दिस मेक्स जुडिशरी an active protector of fundamental rights. ठीक है, इज इट जुडिशियल एक्टिविज्म? एक्टिव है तो एक्टिविज्म है ही, यस। कर सकते हो, लीगल वीगल के लिए तो कर ही सकते हो, सबके लिए कर सकते हो, ठीक है, लेकिन हम यहाँ पे एफआर की बात कर रहे हैं, लीगल के लिए भी आप कर सकते हैं, ठीक है। तो फिर अब ये कुछ बेसिक चीजें हो गई। तो व्हाट पावर यू हैव टू पावर टू अप्रोच टू द सुप्रीम कोर्ट, एंड सुप्रीम कोर्ट इज बीइंग empowered to issue the writs so that your grievance is being redressed. So now we have to understand what type of writs Supreme Court has power to issue. तो अब अगर हम आर्टिकल 32 क्लॉज 2 देखेंगे तो उसमें लिखा हुआ है सुप्रीम कोर्ट विल हैव पावर टू इश्यू द रिट्स ऑफ द नेचर, ठीक है, मीन्स दे कैन इशू अदर टाइप्स ऑफ रिटन ऑर्डर्स ऑल्सो बिसाइड्स दीज 5 टाइप्स। ऐसा नहीं है कि ओनली दीज 5 टाइप्स ऑफ ऑर्डर्स, दे कैन इशू अदर टाइप्स ऑफ ऑर्डर्स ऑल्सो, ठीक है। तो अब आर्टिकल 32 लिखो, क्लॉज 2। ये क्या है? right, it tells about the types of orders, directions and the writs whatever Supreme Court find appropriate, whatever Supreme Court finds appropriate, they can issue, ठीक है, मतलब इंस्टेंट केस में। अब लिखो, कॉन्स्टिट्यूशन स्पेसिफिकली मेंशंस 5 types of writs, but judiciary can issue orders or writs beyond these 5 types. तो अब फर्स्ट टाइप है writ of habeas corpus. Corpus means body, habeas means present, bring the body. Habeas corpus means bring the body. मतलब है, if someone is detained arbitrarily or someone is missing, कोई मिस है आपके पास सारा, कोई डेथ है तो आप रजिस्टर करिए, कोई अचानक गायब हो जाए, ठीक है, कैसे गायब हो गया, तो someone is detained or is missing arbitrarily, ठीक है। अब इसमें लिखो, it can be used against
the private body also, as well as police. प्राइमरली तो स्टेट के लिए है, लेकिन अगेंस्ट प्राइवेट बॉडी ऑल्सो. देन मोस्ट फ्रीक्वेंटली यूज्ड, सबसे ज्यादा इसी को यूज किया जाता है, इसी के लिए अप्रोच किया जाता है. ठीक है. एंड दीज रिट्स दे ओरिजिनेट फ्रॉम ब्रिटिश ट्रेडिशन. फाइन. तो इफ some family member is missing, artificially detained, arbitrarily detained, you can approach to the court, and court will say bring the body and present in its front, and then court will see whether detention is justified or not. Suppose detention is under preventive detention, it will be permitted. Suppose it is not justified, then you have to release that body with the immediate effect. ठीक है. तो अब इसमें लिखो, this writ is issued only if detention is arbitrary. It is not issued if detention is according to the law. For example, if person is detained under preventive detention laws, तो अब लिखो, thus only if person is in police custody or private custody without the authority of law. देखो, if person is detained in judicial custody, person can seek bail for his release. तब आप बेल मांगेंगे and not the writ of habeas corpus. Now next writ is writ of mandamus. हम लोग मैचिंग पहने, डायरी दे सकते हैं आज? है आपके पास? ठीक. ठीक है. क्या है? रिट ऑफ मैंडमस है. जैसे कोई राजा भैया टाइप पकड़ ले गए, तब आप पुलिस के पास जाओ, पुलिस और राजा भैया का मान लो कनेक्शन हो, तो पुलिस छुड़वा ही नहीं रही हो, तो आपको दोनों लोग, प्राइवेट बॉडीज भी मतलब बंद कर सकते हैं. तो दोनों के अगेंस्ट, वैसे तो स्टेट के अगेंस्ट ही होता है. ठीक है. छुड़वा थोड़ी, फेलियर थोड़ी है, उनका कॉल्यूजन हो सकता है. गलत है तभी तो जुडिशरी है. चेक्स एंड बैलेंसेस चाहिए ना. एनी पर्सन कैन बी रॉन्ग. टू अर्र इज ह्यूमन. हाँ, देगा ना कि भाई पुलिस को कहेगा कि कैसे इंसान बंद है, आप क्या कर रहे थे. ठीक है. पुलिस तो आई बेचारी डांट खाने के लिए. ठीक है. इसीलिए तो लोग जाते नहीं उस नौकरी में. इधर से पब्लिक
परेशान करती है, उधर जुडिशरी परेशान करती है, कोई सुनता नहीं है ना पुलिस वालों की, ठीक है, कि मैजी बना दी है वैसे। तो अब चलो रिट ऑफ मैंडमस। मैंडमस ये सब क्या है, ये सब लैटिन वर्ड है, फाइन। तो मैंडमस मीन्स वी आर गिविंग यू ऑर्डर। मैंडमस मीन्स डायरेक्शन, गिविंग ऑर्डर। ठीक है, लिखो व्हेन यूज्ड, लिखो अगेंस्ट द ऑफिशियल्स, when they are not performing their duty which they are supposed to perform. Or performing the duty not in a adequate manner. पुलिस वाला कह रहा है 10 दिन से तो ढूंढ रहे हैं भैया, मिल नहीं रहे, ठीक है, तो वो कह रहा है ड्यूटी में कोई कमी नहीं है, लेकिन क्या करे, तो भी आप कर सकते हैं, या तो ड्यूटी ही नहीं कर रहे, ठीक है, तो वो ऑर्डर दिया जा रहा है। अब लिखो लिखो वाई, बिकॉज if if officer is not performing the duty, it may lead to the violation of the rights. Is it now issued only also against the judicial and quasi-judicial bodies? Earlier it was only for administrative bodies, but now it is also used against judicial and quasi-judicial bodies. अब लिखो right. Originally issued only against administrative bodies, but now also against judicial and quasi-judicial bodies. For example, against tribunals, तो इंटर स्टेट वाटर ट्रिब्यूनल के अगेंस्ट भी हम मैंडेमस कर सकते हैं. डज दीज रिट्स एस्टैब्लिश रूल ऑफ लॉ? ठीक है दोनों ही. नेक्स्ट है रिट ऑफ प्रोहिबिशन. पहले एग्जीक्यूटिव के अगेंस्ट थी, लेकिन अभी क्वाजी जुडिशियल जैसे एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल्स या वाटर डिस्प्यूट रिवर ट्रिब्यूनल्स या लोअर कोर्ट्स के अगेंस्ट भी कर सकते हैं. प्राइवेट के लिए नहीं. प्राइवेट के लिए क्या करोगे? प्राइवेट को थोड़ी तुम कहोगे, ठीक है, ट्रिब्यूनल के पास जाओगे. जैसे हम तुम्हें ना पढ़ाएं तो तुम क्या कहोगे? जुडिशरी से कहोगे कि मैम पढ़ा नहीं रही. मैक्सिमम तुम कंज्यूमर फोरम में जाओगे. ठीक, क्या हो? सेबी इज अ रेगुलेटरी बॉडी, वो डिसीजन थोड़ी देती है. रेगुलेटरी वो कर सकते हैं, बट सेबी आई डोंट थिंक इज अ जुडिशियल बॉडी. क्यों? जो डिसीजन दे वो जुडिशियल है. दे गिव डिसीजन.
रेगुलेटरी टाइप बॉडी है, कोर्ट एग्जामिनिंग द केस, बट पता नहीं, आई डोंट नो, लीव इट। अब आते हैं प्रोहिबिशन। प्रोहिबिशन का मतलब टू स्टॉप, प्रोहिबिट करना, रोकना, टू स्टॉप। टू स्टॉप का मतलब हो गया स्टे ऑर्डर। स्टे ऑर्डर ले आइए। ठीक है, तो लिखो दिस इज अ रिट ऑफ जुडिशियल नेचर। इज इट एक्सक्लूसिवली जुडिशियल? यस, ये केवल जुडिशियल के लिए ही है। जुडिशियल नेचर। अब लिखो व्हेन इशूड। लिखो टू प्रिवेंट the judicial authorities from making any decision which is in excess of their jurisdiction. अंडरलाइन करो, एक्सेस ऑफ देयर जुरिस्डिक्शन मतलब बियॉन्ड द परमिसिबल लिमिट्स और कॉम्पिटेंसी। तो मान लीजिए इलेक्शन डिस्प्यूट है, इलेक्शन पेटिशन है, दैट कैन गो ओनली टू हाई कोर्ट, लेकिन कोई सबऑर्डिनेट कोर्ट उस पर डिसीजन लेने लग जाए तो क्या होगा? देन यू कैन अप्रोच दैट यू कांट टेक द ऑर्डर, तो प्रोहिबिट। बट प्रोहिबिशन इज बिफोर दैट एक्ट इज कमिटेड, बिफोर यू आर कंसिडरिंग अ केस विच इज नॉट इन योर जुरिस्डिक्शन, तब उसके लिए रिट ऑफ प्रोहिबिशन है। कोई केस है, मान लो उसके लिए स्पेशल कोई ट्रिब्यूनल है, तो डायरेक्टली हाई कोर्ट में ही चले गए, अगर लॉ के अनुसार है तो वैसे नहीं कर सकते हैं, तो रिट ऑफ प्रोहिबिशन है, तो आप वो प्रोसीजर को फॉलो करेंगे। इज दैट क्लियर? नाउ नेक्स्ट इज रिट ऑफ सर्शियोरारी। Certio means certification. It is also understood, मतलब एक तो ये मीनिंग भी लिया जा सकता है, एक और मीनिंग लिया जाता है टू क्वैश द डिसीजन। क्वैश कर दिया, रिजेक्ट कर दिया। तो अब इसमें लिखते हैं इफ प्रोहिबिशन इज बिफोर द डिसीजन टेकन by subordinate, by lower courts, certiorari is after the decision taken. अब लिखो which decision, देखो एक्सेस ऑफ जुरिस्डिक्शन, एक्सेस ऑफ जुरिस्डिक्शन मींस विच डू नॉट कम इन देयर कैपेसिटी। ठीक है, एक्सेस ऑफ जुरिस्डिक्शन। तो प्रोसेस क्या होगी? प्रोसेस सुप्रीम कोर्ट
will demand the certification. आप सर्टिफाई करें, आपका ऑर्डर है, एंड द ऑर्डर ऑफ द लोअर कोर्ट विल बी reviewed by, order of the lower court will be reviewed by Supreme Court. अब लिखो, if found in excess of their jurisdiction, judiciary will quash the order. निरस्त कर देगी, quash the order. वो वैलिडिटी नहीं रहेगी उस ऑर्डर की. ठीक है. Now next is writ of quo warranto. सही डिसीजन नहीं लिया है तो वो मतलब सुप्रीम कोर्ट जाएगा, अपील करेगा. अपील करेगा. देन सुप्रीम कोर्ट कौन सी रिट लगाएगा मैम इसमें, इस क्या नाम है, इस वाले नहीं तो डिसीजन जैसे डिसीजन सही नहीं है, यानी कि हम अपील करते हैं, तो अपील अलग अलग कॉन्टेक्स्ट में होती है. क्रिमिनल केस उसमें तो अपील के कुछ पैटर्न होते हैं, तभी आप अपील कर सकते हैं. सब्सटेंशियल क्वेश्चन ऑफ लॉ, सब्सटेंशियल क्वेश्चन ऑफ पब्लिक इंपॉर्टेंस, तब आप अपील करेंगे. और सुप्रीम कोर्ट डिसीजन को चेंज कर सकता है, दैट इज डिफरेंट थिंग. लेकिन यहां पर क्या है, डिसीजन है. आपने किस ग्राउंड पर आप रिजेक्ट कर रहे हैं, इस ग्राउंड पे नहीं कि आपके पास तो कोई अधिकार नहीं था, मेरी कोई अपोजिट पार्टी है, वो जाकर के सबऑर्डिनेट कोर्ट से मेरे खिलाफ सम्मन ले आए, तो हम पूछेंगे ना आपका राइट ही नहीं था, ये उस पर्पस के लिए है. तो मतलब प्रोहिबिशन के तहत वो रोक देंगे जो भी जजमेंट. हमें जजमेंट से असहमति है, वी डोंट एग्री विद द जजमेंट, तो वी विल नॉट से कि इट इज नॉट इन योर जुरिस्डिक्शन. वी विल से इट इज लाइक एरर ऑफ लॉ, एरर ऑफ जस्टिस, सो वी विल अपील. यहां पर तो केस है, आप होते कौन है ये केस डील करने वाले. ठीक है, ये केस तो हाई कोर्ट डील करेगा, तो आपके जुरिस्डिक्शन में ही नहीं आ रहा, तो आप कैसे डील कर रहे हो ये केस. तो यहाँ जुरिस्डिक्शन पे क्वेश्चन है, वो जजमेंट पे क्वेश्चन है. इस बीच ट्रिब्यूनल्स का कोई कैसे कहीं तक वो नहीं आ सकता मैटर. इस बीच ट्रिब्यूनल्स का मैटर्स कैसे कहीं तक नहीं आ सकता, जो ट्रिब्यूनल्स रहते हैं, वाटर डिस्प्यूट ट्रिब्यूनल हो गई कैसे कहीं तक. ट्रिब्यूनल्स, लेकिन अगर इंटरस्टेट वाटर डिस्प्यूट ट्रिब्यूनल है, उसका केवल मैंडेट इतना है कि इट विल डिसाइड द डिस्ट्रीब्यूशन फॉर्मूला. बट इफ इट passes a judgment where it also says that reject, मतलब this should not be built here, it should be built here, तो वो तो आप jurisdiction क्रॉस कर रहे हो, तो आपको प्रोहिबिट कर देंगे. ठीक है, एक्स्ट्रा नहीं करना है, आप अपने जुरिस्डिक्शन के बाहर नहीं जा सकते हैं, आपका वो जजमेंट वैलिड नहीं है. जैसे वो कह रहे हैं ऑर्डर ऑफ वाटर ट्रिब्यूनल इज वैलिड एंड विल हैव द इफेक्ट ऑफ द जजमेंट ऑफ सुप्रीम कोर्ट. सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के समान ही ट्रिब्यूनल का ऑर्डर की वैलिडिटी है, ऐसा दे आर सेइंग. बट विच ऑर्डर, विच इज गिवन एज पर द मैंडेट. व्हाट वाज योर मैंडेट? To define the formula, but you are moving ahead, you are saying that it should be done, it should not be done. वो आपका मैंडेट नहीं, तो उसको प्रोहिबिट कर देंगे. ओके. और जैसे सर्श्योर आ रही है, मतलब आपके राइट में ही नहीं है, आपने कोर्ट से सम्मन जारी करा लिया, किसी को पकड़ लिया, तो कह देगा ना ये तो जुरिस्डिक्शन में था ही नहीं, आपके ये केस इसमें था ही नहीं, तो इन्होंने इस ऑर्डर की वैलिडिटी नहीं है फिर. ओके.
मतलब आपकी जिम्मेदारी है, आप ये सर्टिफाई करके दे कि आपने जो जजमेंट लिया था ये आपके उसमें आता है, लिख के सारा दें सर्टिफिकेट के साथ, वरना हाई कोर्ट कहेगा हमने दिया ही नहीं, हमने करा ही नहीं है। तो आप सर्टिफाई करके लेके जाएं वहां और वो उसको रिव्यू करेंगे। तो जो एग्रीव्ड पार्टी है उसको इंश्योर करना होगा, वरना इट हैज टू बी अ सीरियस थिंग ना। तो सर्टिफिकेट करे, या अगर हाई कोर्ट सर्टिफिकेट नहीं कर रहा तो फिर ऑर्डर की क्या वैलिडिटी है। तो आप एक्यूज कर रहे हैं, तो हाई कोर्ट से ये सर्टिफाई करके कि आपने ऐसा किया है। इसमें नहीं करेगा हाई कोर्ट सर्टिफाई, तो आप फिर अपील, मतलब रिट ऑफ सर्श्योरारी में जा ही रहे ना वहां पे। तो हाई कोर्ट को ऑर्डर सुप्रीम कोर्ट देगा, ठीक है। तो हाई कोर्ट मतलब ऑल कोर्ट्स फंक्शन अंडर द अथॉरिटी ऑफ सुप्रीम कोर्ट। तो हाई कोर्ट का ऑर्डर आप मना थोड़ी कर सकते हो, तो आप करना पड़ेगा। दे आर अंडर द डिसिप्लिनरी कंट्रोल ऑफ सुप्रीम कोर्ट, ये हाईएस्ट कोर्ट है। तो अब आ गया को वॉरेंटो। वारंट मतलब परमिशन, को वारंटो मीन्स हुज परमिशन, किसकी परमिशन से आप यहां बैठे हैं। आई कार्ड है, ठीक है। तो को वारंटो मतलब हुज परमिशन, बाय व्हाट अथॉरिटी, ठीक है। अब लिखो इट इज यूज्ड फॉर questioning the occupancy by a person of a permanent post of a public office, लिखो of a public office of permanent nature। पब्लिक ऑफिस ऑफ परमानेंट नेचर। आप कलेक्टर बने बैठे हैं, आपने एग्जाम पास किया है यूपीएससी का, दिखाइए रिजल्ट दिखाइए, ठीक है। विल इट बी यूज्ड फॉर पॉलिटिकल पोस्ट ऑफ टेम्परेरी नेचर? नो। तो ये है डिफरेंट रिट्स। तो ये क्या है, कोई भी इसमें कर सकता है इसके लिए। तो दीज आर सर्टेन रिट्स। अब जो सर्शियोरारी है, सर्शियोरारी originally was only meant for judicial, but now it is also used for administrative bodies also, because many administrative bodies are also now performing the task of judicial nature, ठीक है। तो सर्शियोरारी में हम लिख सकते हैं also for administrative bodies। ये हो गया आपका रिट्स।